evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Well, dear friends, I hope you've had a nice and wonderful day. Thank you so much for tuning once again on our Motivational Mondays right here on Bob's Radio. And if you've been loving our broadcasts and our programs, please do share it with your friends and family by simply going to Facebook or YouTube and typing in Bob's Radio 21.37 FM, and you'll find all our previous segments there, and you could simply share it with your friends and family so that let them also come to know what all that we're talking about on Bob's Radio. If you would like to get in touch with us directly, do email us on bobsradio21.37@gmail.com or simply WhatsApp us on +91 906 181 7307. Well, I hope that you are all ready for today. We have an exciting guest with us, joining us for part 2 of our series of talks. We are very quickly going to bring him on air. But before that, let me quickly say hi to our virtual guest, virtual RJ in our virtual studio. Hi, Anuj. Hi, Bob. How are you? कैसे हो? I am doing good. Last week आपने बोला कि we have to say Motivational Monday in Hindi. मैं पूछने वाला था आपको कि होमवर्क याद है कि नहीं? Well, with a little help, तो हिंदी में प्रेरणादायक सोमवार. I think so. It's correct. So to all our listeners, we welcome you to our Prerna-dayak Somwar, and hope that you will keep enjoying our Somwars. One step at a time. So tell me, how has been UAE so far? It's still keeping up the heat. It's sultry. It's really hot. The temperatures are just soaring really high. And it's surprising. It's just मैं इतने गर्मी में बेसिकली हूँ कि अब इंग्लिश नहीं भूल गया, हिंदी भूल गया, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ. इतनी गर्मी है कि पूछो मत. और ये शुरुआत ही है, अभी तो जुलाई शुरू हुआ नहीं है. जुलाई और अगस्त जो महीना, वो तो सबसे ज्यादा गर्मी का समय है. Yes, and I think the good thing is, बच्चों लोगों को they have their vacation coming up, right? Maybe another 1 week and schools are closing. ये 2-3 दिन में स्कूल बंद होने वाले हैं. 2 महीने के लिए बच्चे सब लोग फ्री हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगा. काफी लोग इस कारण काफी लोग इंडिया में भी जा रहे हैं, छुट्टी पे भी जा रहे हैं. बट ये है कि काफी लोग छुट्टी में नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता है ना, फ्लाइट टिकट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस टाइम. सरप्राइजिंगली फ्लाइट टिकट्स 3,000 वन ट्रिप बैकवर्ड्स तक पहुंच गए हैं. तो अभी पता नहीं, काफी लोग तो इसलिए प्लान्स नहीं कर रहे हैं उसके लिए जाने के लिए. अच्छा, तो जो लोग इधर हैं, जो बच्चा लोग, if you're not going for vacation and if you are at your home, wherever you are in the Middle East, in India, wherever you are, please do send us your songs, your stories. तो vacation time तो बहुत सारा, you can do a lot of things, बहुत सारा time भी है आपके पास. तो if there is a song, if there is a story, send us and we'd love to play them on radio, है ना अनुज? बिल्कुल सही. एक्चुअली बॉब, आपने मेरे को एक छोटा सा आइडिया दिया कि हमारे टीम को पूरा गैदर करके हमको बोलना चाहिए ये वेकेशन टाइम पे छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए. स्पेशली सिस्टर मेरिन लेजेंड को लेके आके उनके थ्रू भी ना काफी छोटे छोटे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए करना बहुत अच्छा आइडिया रहेगा. Exactly. So, dear listeners, do stay tuned. We have a lot of exciting programs that we want to bring to you from our kids. If you have kids who are willing to talk to the world and show their talents, we are so happy to broadcast them. Simply send us their recordings and clips on Bob's Radio 21.37@gmail, or like I said, our WhatsApp number +91 906 181 7307, and we would love to play those wonderful clips of our tiny tots on the radio. Well, I think it's time we go to our first song for today, Anuj. बिल्कुल सही. All right, let's listen to this beautiful Hindi song, and don't go anywhere. We have lots more to come. Stay tuned. We listen to the song and we'll be right back. नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी
होवे सदा होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा होठों से मेरे यीशु मसीह। और नाचूं बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं बादशाह है तू मेरा यीशु। हाँ यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं बादशाह है तू मेरा यीशु। Wow, what a beautiful Hindi song, dear listeners. If you would love to hear your favorite songs on Bob's Radio, do send us your suggestions. Simply let us know what are the songs you want to play. If you would like to dedicate a song to your friend or a family member, do let us know and we will do that for you on Bob's Radio. Well, Anuj, we love to look around us and see what's happening around us. Now, one of the headline news that I just noticed today morning was the news about the Supreme Court decision that went in a positive way. And I don't know if you were following that decision. I think there were a couple of decisions this week, especially regarding abortion and those things, right? ट्रू वेरी ट्रू, बिल्कुल सही आपने बोला। और जो आप बता रहे हो सुप्रीम कोर्ट का जो सुबह ही आज आया था न्यूज, वो एक मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए, बट ये क्रिश्चियन को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा विन टाइप का बोल सकते हैं। Exactly. क्योंकि जो आपको पता है, जो जिसके बारे में लोगों को जिन्होंने इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ा था, ये एक कोच, फुटबॉल कोच, रग्बी जो खेलते हैं, उसके कोच जॉन कैनेडी के बारे में है। जो पिछले कई साल से वो एक लीगल बैटल में थे, क्योंकि उनको उनके जॉब से निकाल दिया था। कारण मालूम है क्या था? हाँ, वो इनका कारण था कि वो फुटबॉल खेलने के बाद अपने उस ग्राउंड में जाके वो अपना घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। and simply because he prayed, the university fired him. या हाँ, वही उनका ये कहना था कि उसके प्रार्थना करने के कारण वो बाकी बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक नॉन सेक्युलर काइंड ऑफ मूवमेंट के लिए। बट वहां पे जो एक्चुअली होता था कि वो खुद प्रे करते थे। वो पहले तो अपने आप प्रे करते थे, धीरे धीरे जो लोग उसको देख रहे थे, वो पसंद कर रहे थे, वो उसके साथ उनके साथ आके ज्वाइन करने लगे अपने खुद के डिजायर से, विल से। पर उसके लिए भी उन्होंने ये बोल के निकाला कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज था। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के कारण इनके हर एक्शन गवर्नमेंट के बारे में दर्शाता है, बताता है, उनके व्यू पॉइंट्स को बताता है। इस कारण उनको बोला गया कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपको चाहिए तो अलग से बैठ के कहीं भी करो। उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, इस कारण उनको वहां से निकाला गया। और ये काफी साल तक, 5 साल के करीबन ये लड़ाई चलते रहा। And then finally today he's won the victory. Yeah, absolutely. Praise the Lord for that. Praise the Lord for that, because absolutely, because we are living in a world, as Christians, and surprisingly, the US being a country that was founded on Christian principles, on biblical principles, starting with the Pilgrim Fathers, even on the American note, in God we trust. So many indications and symbolisms that the country was heavily founded on biblical principles. In that country, a man who knelt down to pray has been fired from his job and has been facing
the courts for his decision to pray. And that is the kind of world that we live in. Well, dear listeners, I wanted to bring that to your attention because, we take it for granted. And it's wonderful that in this part of the world, in Middle East, as Christians, we have the liberty to pray. Nobody is questioning that decision. But the world is moving in a direction where, as Christians, when we profess our faith and when we kneel and pray to God and show our faith to God in public, often there are some consequences and people start to question our decisions. I mean, Anuj, have you seen in especially in this part of the world, one of the things I really admire about our Muslim brothers is that wherever they are, have you seen, be it in the park or in the middle of the street, or even when they're traveling, if it is time for prayer, they'll stop the car, walk out, even if it's the desert, they'll kneel down and they'll pray. Have you seen that? Yes, Bob. मीन्स अभी थोड़ा गवर्नमेंट ने जब रूल्स लग गया है कि रोड पे ऐसे प्रे करना मना कर दिया है, बट पहले जब यहाँ पे दुबई में पहली बार आया था, मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे ही समय होता था उन लोग पार्क कर देते थे रोड पे, कहीं भी हो उन लोग इमीडिएटली अपना प्रेयर मैट गाड़ी में रहता था, उसको निकालेंगे सारे के सारे। अगर लेबर की गाड़ी है तो पूरी लेबर की गाड़ी रुक के सब लोग वहां पे साइड में आके सब मिलके प्रार्थना करते थे। एंड उनको कोई शर्म नहीं है उस बात पे। Exactly, no shame. They are very pride पे करते हैं लोग। Yes. And wherever they are, it doesn't matter. Even in the middle of a conference meeting, if it is time for prayer, they would go out and pray. This is something that we look around. We always look at the good things in other people, and we appreciate that. And as Christians, this is a lesson that we need to think of our own lives. How much time do we spend in a day thanking God, है ना? Just thanking God in a heart. आपने जब बताया ना ये बॉब, I was thinking, मैं सोच रहा था डैनियल कितने बार प्रार्थना करता था। Exactly. Daniel. Yes. And he was put in the lion's den for that, right? For that he very was put reason. on the lion's den for that. वो भी नहीं, ये हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, ये भी 5 बार अपना नमाज पढ़ते हैं, 5 बार। Means ये हमारे लिए एक शर्मदायक बात है कि हम कितने, बाइबल कहता है कितने बार करना है, मीन बाइबल बोलता है कि प्रे फॉर एवरीथिंग, बट हम लोग वो अपने लाइफ में कितने बार इसको अप्लाई कर रहे हैं। हम तब प्रार्थना करते हैं जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम तब प्रार्थना करते हैं जब हमारे को कुछ जरूरत होता है, जब नौकरी में प्रॉब्लम होती है, फैमिली में कोई इशू होता है, बच्चा का या फिर अपने खुद का हेल्थ कुछ खराब होता है, तब हम लोग प्रार्थना करते हैं। तब हम लोग प्रार्थना में बहुत मगन हो जाते हैं। And we become so godly. Exactly. And that is why I love about the radio. These are the things that we can openly discuss on the radio. And I'm sure our listeners, we don't often discuss these things openly. We need to look at that and think about ourselves, analyze our own lives and how much time are we taking to pray and thank God for what He has done in our lives. It's a good practice. And, sometimes we may need to pay a price, to show that, but it is important that we do that. I think that's a good discussion. With that, let's go to our second song. बिल्कुल सही. And that song is Tumsa, right? Yeah, let's go to Tumsa and we'll be right back. जमीन
भरोसा कोई नहीं. What a beautiful song we just heard. Dear listeners, if you love the song, do send us your likes, send us a thumbs up on our Facebook, on our YouTube pages, and we'd love to hear your feedbacks as well. Well, it's time we bring our special guest on air. Today is our part 2 of our series of talks that we are having with Solomon Das. And I think, Anuj, for our listeners who are joining us and who've missed part 1, maybe it's good to have a quick recap. What do you think? यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बॉब. पिछले हफ्ते हमने सोलमन भाई के साथ बातें किया था, बहुत सारी बातें की थी. और जो हमने टॉपिक बात किया था पिछले हफ्ते वो था डिप्रेशन के बारे में. डिप्रेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल गया है काफ़ी लोगों में, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर है, और जो यंगस्टर्स को जूझ रहे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. बॉब, आप कुछ उसमें शेयर करोगे साथ में? Yeah, so we were talking about the anxiety and how people are not taking it seriously. We often think that, okay, we will not be affected by it, and he was telling that we need to take this seriously, and when treatment is required, the treatment needs to be sought out. And another point that he was raising, there was a question that, is this a punishment from God? And we also heard the answer, to that question. Is it indeed a punishment? We always think that these kind of depression and sorrows and a lot of hopelessness, is it because something has happened in my life, something wrong has happened in my life, and why am I going through, as a Christian, why am I going through these things, है ना? तो we start to question our faith. ये जो चीज है, ब्रदर ने बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया इसके बारे में कि चर्चेस में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे जो क्रिश्चियन समूह में हम लोग इसके बारे में उतनी ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं. ये एक प्रॉब्लम, एक रियल प्रॉब्लम है. इसके होने के बावजूद भी हम लोग उसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं. हमारे ये जो उन्होंने जो पॉइंट बताया, आपने जैसे बताया कि ये क्या एक पनिशमेंट है, क्या परमेश्वर की तरफ से ये आपको पनिशमेंट है, ये एक एक्चुअली एक जजमेंट पास किया गया हुआ चीज है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. भाई ने बहुत अच्छी तरह हमें बाइबल से भी बताया कि कैसे हम जब डिप्रेशन में हो, कैसे हम बाइबल परमेश्वर के वचन से अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, शक्ति पा सकते हैं, और कैसे उसको फेस कर सकते हैं. उस पे अपने आप जो हमारे को सेल्फ वर्थ वाले जो सवाल आते हैं, उसको कैसे हम बाइबल में जाके उसमें कैसे हम शक्ति पा सकते हैं, कैसे उसमें से उत्तर पा सकते हैं. उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह उसमें बताया. Correct. Yeah. And also we were looking at as a Christian, are there anything that God has given me to face these things, and then we heard an answer to that also. Has God equipped us? Yes, we find the answer to that is yes, God has equipped us. और हमने ये भी we discussed this also about social media, है ना? Social media is causing a lot of anxiety and depression among young people. And self-obsession, खुद से प्यार. Exactly. आपने पहले बताया ना, likes के लिए लोग क्या क्या कर बैठते हैं. मैं एक छोटा सा बताना चाहता था. मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा एक छोटे से बच्चे के बारे में, जिसने पुणे में रात को गाड़ी अपना स्कूटर चलाते हुए कि उसने बेसिकली हाथ पैर छोड़ के बिल्कुल पीछे, गाड़ी के पीछे जाके, ही वाज स्केट्स पहन के, ही वाज ड्राइविंग आउट ऑन दैट, एंड ही वाज गेटिंग सो मेनी लाइक्स. उसके लिए बहुत लाइक कर रहे थे, पर अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस बाय शोइंग दैट एक्रोबैट्स? मींस अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? उसने कुछ भी हेलमेट कुछ भी नहीं पहना है. सो व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? समझ नहीं आ पाया एक्चुअली. Yeah, and that is what we want to show the world all these things and try to boost up ourselves, and then when we don't get that recognition, तो फिर हम depression में जाते हैं ना, and we go into all these problems. So there are so many wonderful golden nuggets that we brought in that discussion last time. So dear friends, if you haven't listened to that, do listen to our episode from last week. That's the
20th of June, where we spoke with Brother Solomon Das and discussed all these things. है ना Anuj? Yes, absolutely true. आप उसमें YouTube में जा सकते हैं. YouTube में आपको इसके ये सोलोमन दास भाई के ये सेशंस और पिछले सारे सेशंस आपको मिलेंगे. ये सारे सेशन सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है. शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ किसको ये मदद कर सकता है. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लोगों में शेयर करिए. Absolutely. We need to share it more, let others listen to this more and more. And I think it's time we bring our guest for our listeners who've here for the first time. Let me give you an introduction. Solomon Das holds a doctorate in forest biotechnology with over 6 years of experience in publishing. Currently, he's working as an editorial assistant and with experience in publishing, including copy editing, research articles of various scientific journals from Elsevier and Wiley, quality control and production support for research articles, and he has edited accounting and tax journals for Walters Culver. He was also involved in quality checking the work done by other editors and in assisting internal teams. He's a researcher who has published various research articles. He has authored books and a chapter for a university. Solomon Das was also involved in counseling and mentoring, and in off hours he loves hiking, trekking and mountaineering. He's married and they have twin boys who are age 9. Well, it's about time that we bring Solomon Das on air. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Brother Solomon Das, welcome to Bob's Radio 21.37 FM once again. थैंक यू बॉब, थैंक यू सो मच अनुज. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस समय के लिए. आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ आप सबके बीच में आने के लिए. And we are also excited for part 2, aren't we Anuj? Absolutely. सोलोमन भाई, दिल थाम के बैठिए. आपके पास आपसे काफी सवाल करना है, काफी बातें करना है और आपसे काफी सुनना है इसके बारे में, जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं. तो हमारा जो आज का टॉपिक बेसिकली हमने जैसे आपसे आज बात करने जा रहे हैं वो है एंग्जाइटी और डर. मेरे को लगता है ये भी आपका एक फेवरेट टॉपिक है में से है, राइट? जी, क्योंकि ये सब भावनाओं से जुड़ा हुआ बात है. हम स्वाभाविक तौर पे बहुत डरने वाले लोग हैं और बहुत छोटी-छोटी बात पे चिंता करने वाले लोग हैं. और अगर हम इन दोनों विषय पे बात ना करें तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा. इसलिए हमें खुल के बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जहाँ अपने डर के विषय में या व्याकुलता या चिंता के विषय में ना बात करेंगे तो ये बेइंसाफ़ी होगी, कहा जाए, ठीक नहीं होगा. मैं जो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, डर क्या होता है? मीन्स हम लोग इसके बारे में जानते हैं, पर ये क्या है एंग्जाइटी, ये क्या है एक्चुअली? देखिए, ये हमें एक बात समझना, ये एक तो हमारी भावनाओं का एक भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं. डर, व्याकुलता, ये सब हमारे भावनाओं का एक भाग है ये. और इस भावना, जो कोई भी भावना हो, चाहे डर हो, व्याकुलता हो या कोई भी भावना का जो उत्पन्न होता है वो विचार से शुरू होता है. विचार से, द थॉट आपके भावनाओं को प्रभावित करता है और भावना आपके प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, एक्शंस को लेके आता है. ये कनेक्शन है, सीक्वेंस है. इसलिए मैं फिर रिपीट करूंगा, थॉट गिव बर्थ टू इमोशंस एंड इमोशन गिव बर्थ टू द फिजिकल एक्शंस. तो ये जो सीक्वेंस है इसको हमें समझना है. तो जो डर है, हम सोचते हैं कि डर अच्छा है, अगर सांप है या कोई खतरा है तो उससे डरने से हम सुरक्षा महसूस, हम बच सकते हैं, राइट, खतरे से. वो एक अलग तरह डर है. लेकिन हम आज जो डर है, आज का जो हम विषय है वो डर के बारे में बात नहीं करेंगे. जो डर, हम उस डर के लिए बनाए नहीं गए थे. हमें इसका उत्तर उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल से ही हमें मिल सकता है. हमारे सृष्टिकर्ता जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया था, डरने के लिए नहीं बनाया था, या कहा जाए डर की भावनाओं से भर के नहीं बनाया गया था. एक आज़ादी के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया था. लेकिन जो डर है, जो आज हमारे अंदर हमें खाए जा रहा है, वो हमारे व्यक्तिगत पाप के व्यवहार से जुड़ा हुआ भावना है, डर. और डर ऐसा डर है कि हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, या कुछ गलती मैंने करी, कल दोबारा मुझसे ना हो जाए. लोग
हारने से डरते हैं, लोग अपने बारे में अपने कुछ कहने से डरते कि मैं कुछ कह दूंगा गलत हो जाएगा, मेरे व्यवहार, मेरे बोलने से, मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, मेरे नौकरी के क्षेत्र में, मेरे शादी के क्षेत्र में, मेरे पत्नी को मैं कैसे इम्प्रेस करूं, वो डर, पत्नी को मैं कहीं बुरा ना बन जाऊं उसका डर, पत्नी का वो प्रेशर कि पति का बुरा ना बन जाए उसका डर, बच्चे, माँ बाप का डर। हम एक जो डर के माहौल में जो जी रहे हैं, आप मीडिया को देख लीजिए, डर बेच रहे हैं, कहीं ये को डरा रहे हैं। मीडिया सेल्स फियर एंड दे मेक मनी, वो डर को Exactly. बेचकर पैसा कमाते हैं। तो डर कहा जाए भावना एक ऐसी खतरनाक चीज है जहां पे पैसा कमाया जा रहा है और हम डर इतने जल्दी जाते हैं कि हम स्वाभाविक तौर पे डर हमारे अंदर बैठ चुका है क्योंकि हम पाप के कारण से। इसके विषय में आगे हम बात करेंगे। डर एक चीज और उत्पाद करता है, वो है हमारा व्याकुलता। व्याकुलता। हम व्याकुलता, एंग्जाइटी इंग्लिश में कहते हैं, हम बहुत जल्दी व्याकुल या चिंता हो जाते हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हम सोचते हैं कि कल मंगलवार को मुझे इंटरव्यू में जाना है और मुझे नौकरी के लिए फेस करना है, तो डर है क्या क्या मेरी जॉब लगेगी या मेरी जॉब नहीं लगेगी, मैं सही बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। इस कारण से एक व्याकुलता उत्पन्न होता है कि यार मैं कहीं लड़खड़ा गया, मैं सही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं रात को नींद नहीं आएगी, मैं बहुत तैयारी करूँगा, सुबह जल्दी उठ जाऊँगा। मैं व्याकुलता के साथ, उस डर के साथ इंटरव्यू फेस करूँगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हो जाती है। इसलिए बहुत सही बिल्कुल सही बात लगता है। ये हमारी भावनाओं को अगर हमने सीखा नहीं नियंत्रण करना, डर और व्याकुलता को, तो हम अच्छे काम को भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए इस भावनाओं को हमें समझना मेरे भाई बहुत सख्त ज़रूरत है, खासकर हमें से बाइबल से सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें हैं। जो श्रोताएं मेरी सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, मैं कहूँगा आप लोग एक बार बाइबल को ज़रूर खोल के देखिएगा। बाइबल कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई धर्म की किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में, मैं फिर रिपीट करूँगा, परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में सारी बातें बता दी गई हैं जो एक मनुष्य को अंदर से बाहर प्रकट करता है। बाइबल मेरा प्रतिबिंब है, इट्स ए मिरर ऑफ मैन, जो मनुष्य के अंदर की सारी छुपी भावनाओं को प्रकट करता है। इसलिए अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल निश्चय पढ़िए। बिल्कुल सही। ब्रदर, आपने जो इसे बताया, जो मेरे दिमाग में एक जो सवाल अभी आ रहा है, ये जो व्याकुलता, डर, ये जो आपने जिस डर के बारे में बताया, ये किस उम्र में आदमी को, एक आदमी को अफेक्ट करता है? किस उम्र में, किस एज में बेसिकली? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इसकी कोई उम्र नहीं होती है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी डर होता है और वो उसके अंदर व्याकुलता भी होती है, बस वो प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन इसको धीरे धीरे जो जब बच्चे बढ़ते हैं घर में, हमारे जो बच्चों की परवरिश होती है, माँ बाप को ध्यान रखना है कि हम इन बातों को बड़े कम उम्र में बच्चों को सिखाएं। मैं आपको अपने बच्चों के बारे में एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरे जुड़े हुए बच्चे हैं, ट्विन बॉयज़ हैं। मेरी वाइफ ने बोला कि एक बालक, वो उसको लगता है कि अगर फेल ना हो जाए, है 4th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो फेल होने से उसको लगता है कि वो एग्ज़ाम से डरता है। मैंने उसको पास बुलाया, मैंने बोला बालक, मैंने उसका नाम बोला इवान, डरो मत, फेल तो हो गए ना, फेल हारना सीखो। हमेशा हम लोगों को जीतना सिखाते हैं, करेक्ट? बच्चों को अरे फर्स्ट रैंक लेके आओ, सेकंड रैंक लेके आओ, तुम टॉप करो। हमने बच्चों को बचपन से जीतना सिखाया है, राइट? बिल्कुल सही। आप भूल जाते हैं, प्रभावित नॉर्मल तौर पे हमें और आप इस संसार में, जो पाप भरा संसार है, वहाँ हम लोग गिरते हैं, हारते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं। हमें अपने बच्चों को बचपन से गिरना सिखाना है, हारना सिखाना है, उस डर का सामना करना सिखाना है, क्योंकि हम पाप भरे संसार में जी रहे हैं जहाँ पे जीत हमेशा सबको नहीं मिलती है, जहाँ पे हमेशा सबकी नौकरी नहीं मिलती है, जहाँ पे सबको फर्स्ट रैंक नहीं आता है, सब अपनी क्वालिटी को प्रूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को हारना सिखाइए, उनको उस डर का सामना करना सिखाइए। तो क्या होगा, उनको समझ में आए कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, मुझे सहायता की ज़रूरत, आई नीड हेल्प। आप मेरी बात समझ रहे हैं? व्हेन यू नीड हेल्प यू विल गो फॉर सोल्यूशन, और वो समाधान हम आगे बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डर का कोई उम्र नहीं होता है। हमें बचपन से ये डर का, हम लोग
छुपाते हैं, नहीं हार का सामना मत करना बेटा। हम लोग परफेक्शनिज्म बहुत बनाते हैं बच्चों को, हम लोग बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, बहुत ही हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करके उनको सिखाते हैं और बढ़ाते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं, जब वो अकेले होते हैं, तो जब सामना करते हैं ज़िंदगी का तो हार जाते हैं या फिर चिंता से प्रभावित होकर आगे कदम नहीं उठा पाते हैं। सही। Or I think it is more in these COVID times because children are not really, going and going to schools or spending time with friends, and suddenly, when they come to situations where they are meeting somebody face to face, and when they get disappointed, or when they face a depressing situation, they don't know how to handle it. yes, very true, very right, Bob. This COVID has affected, ये कोविड ने हमारे इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, कोविड ने हम सबके डर को बाहर लेके आया गया है, सबके। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं डरा नहीं कोविड से, सब लोग डरे हैं। कारण क्या है, अच्छे विश्वासी जो मजबूत थे वो भी डर गए कि अरे यार मुझे मैं कहीं मर ना जाऊं। द फियर ऑफ डेथ ग्रिप्ड ऑल आवर हार्ट्स, है ना। कोविड के हमने इतना डर का जो प्रभाव इतना सीवियर हो गया था, द फियर बिकम सो लाउड एंड क्लियर ड्यूरिंग कोविड। हमारी भावना एकदम कहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई थी कि हर जगह डर 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 बैठ गया था। और डर ने क्या किया, कोविड ने बच्चों को, बड़ों को, हर एज वालों को प्रभावित किया। और उस डर के कारण हमने बहुत एक्शंस भी लिए, राइट। हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए। बेसिकली हमें समझना है डर के स्रोत को। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ द फियर, जो हम आगे देखेंगे। एग्जैक्टली। वेल सोलोमन, एक और चीज मैं बात करना चाहता था, ये था कि आजकल काफी फैमिलियां टूट रही हैं, काफी शादियां टूट रही हैं। एक जो है जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये इसकी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। एक फैमिली को चलाना, एक बच्चों को पैदा करना, उनको पढ़ाई करवाना, ये सब कॉस्टली होते जा रहा है। ये भी क्या हमारे एक व्याकुलता और डर का एक पार्ट बनते जा रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसे डिसीजंस लोग लेने लग गए, कुछ डिफरेंसेस आने लग गए आजकल के नॉर्मल सोसाइटी टर्म्स में? जी साहब, इसका मैं जवाब देने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। अगर उत्पत्ति की पुस्तक का ध्यान दें, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर सृष्टिकर्ता की बात को सुने और सीखें और समझें। कहा जाए मनुष्य के लिए जो सबसे बेहतर है वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वही बता सकता है। मतलब ओनली गॉड हिज द क्रिएटर कैन गिव द राइट आंसर और द वे टू ह्यूमन बींग्स। कहा जाए आदम हो कुछ भी नहीं मालूम था कि संसार में जीना कैसे है, कौन बता सकता है, वह केवल परमेश्वर सृष्टि करता। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य ने उस शैतान की बात को सुनकर परमेश्वर के तुल्य होने को ज्ञान समझकर परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया। करेक्ट, बिल्कुल सही। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर पर निर्भरता दिखाए, डिपेंडेंसी दिखाए। परमेश्वर, गॉड वांट मैन टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड, बट डेविल वांटेड मैन टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने के से अलग कर मनुष्य को आज़ाद कर दिया। वो सोचता है कि मैं आप खुद परमेश्वर के तुल्य हो चुका हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्या हो गया, ऐसे करने से जब मनुष्य आज़ाद हो गया, अकेला हो गया, तो आपने ध्यान दिया होगा सबसे पहली भावना अगर बाइबल में लिखी है, जब परमेश्वर जब उस चल के आया तो आदम किस भावना से प्रभावित था? डर गया था और वो पेड़ के पीछे छुप गया था। डर, वो भावना आदम हव्वा को मालूम नहीं था। डर उसके दिल को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गया है, वो निर्भरता खत्म हो गई है। मतलब क्या है, मैं और आप जो पाप में जन्मे लोग हैं, हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ को। हम हर चीज़ को कंट्रोल, अपने हिसाब से कंट्रोल करके जीना चाहते हैं। जहाँ कंट्रोल नहीं है हम डरते हैं, अरे क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। आपने जो शादी का उदाहरण बताया है, मैं अगर नौकरी ढंग से नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस में 5 लाख रुपए नहीं है, तो मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मैं घर कैसे चलाऊँगा। पत्नी को हनीमून में ले जाना है, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में ले जाने हैं, अच्छे वेकेशंस करने हैं, पैसे नहीं है। अच्छी नौकरी है तो उसमें नौकरी का बॉस का प्रेशर है, तो मैं पत्नी को खुश करूँ कि बॉस को खुश करूँ। तो सारी जो कैलकुलेशन हम करते हैं, कहीं ना कहीं डर इसलिए बैठा हुआ है कि हम लोग हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइफ को हर तरीके से, नौकरी, शादी, बच्चे, हर तरीके से हम अपनी लाइफ को हम डिफाइन कर रहे हैं। वी आर डिफाइनिंग अवर लाइफ
वी आर डिफाइनिंग अवर लाइफ, गॉड इज नॉट डिफाइनिंग अवर लाइफ, वी आर डिफाइनिंग अवर लाइफ। हम लोग अपने जीवन के पथ को डिफाइन कर रहे हैं। इस कारण से क्या होता है, देयर इज नो फेथ, वहाँ विश्वास नहीं है। किस पर? जिसने मुझे और आपको बनाया है, द वन हु मेड अस, वी डोंट हैव फेथ ऑन हिम। तो देयर इज नो फेथ। फेथ किस पर है? नौकरी पर। फेथ किस पर है? बॉस पर। फेथ किस पर है? मेरी काबिलियत पर। फेथ किस पर है? मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। और उसी तरीके से लड़कियां भी आजकल वही देखती हैं, लड़का क्या कर रहा है, उसकी नौकरी कैसी है, क्या सैलरी है, कौन सी कार चलाता है, खुद का घर है कि नहीं। इस कारण से शादियां कंडीशंस के आधार पर बनती हैं, ना कि फेथ के आधार पर। तुम्हारे पास गाड़ी है तो शादी करेंगे, इसलिए लड़के बेचारे 30-35 साल लगे हुए हैं नौकरी करने में, मर्सिडीज खरीदने में, घर बनाने में, तो शादी नहीं होगी। क्यों? लड़की भी चाहती है कि लड़का के पास गाड़ी नहीं तो शादी क्यों करूंगा भाई, मुझे बाइक में नहीं बैठना है, मुझे चलना नहीं है, साइकिल में नहीं बैठना है। नाउ मैरिज इज नाउ कंडीशन बेस्ड, नॉट फेथ बेस्ड। इसलिए वहां पर जब ऐसा होता है द फियर किक्स इन, वहां डर बैठ जाता है, शादी कैसे करूंगा, क्या मैं शादी के लिए तैयार हूँ क्या, अगर शादी कर भी लेता हूँ तो बच्चे कैसे पैदा करूंगा, पैसा ही नहीं मेरे पास। सो योर फेथ इज इन द मनी, नॉट इन द गॉड हु स्टिल होल्ड योर फैमिली लाइफ। इसलिए आजकल लोग शादी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो शादी को निभा नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? उनका शादी का आधार पैसा था, या सेक्स था, या गाड़ी थी, या कुछ दिखावा था, कुछ फैमिली बड़े बड़े पारिवारिक नाम थे कि मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, या किसी कंट्री में, मैं यूएस में हूँ या यूके में हूँ। ये इन सब के आधार पर शादियाँ बनती हैं। जहाँ उसमें कोई भी चीज़ बिगड़ी, लड़की अपने घर चली जाएगी, लड़का अपने घर चला जाएगा। ब्रदर, आपने जैसे अभी बताया, मीन्स ये बहुत एक कॉमन सिचुएशन ही है, जो बेसिकली जैसे जो डर का जो भी डर एक्चुअली वो भी व्याकुलता का एक पार्ट है। मीन्स ये डर, जो नॉर्मल डर क्या होता है, और ये जो एक्चुअली मेंटल इशू रिलेटेड डर क्या है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और क्या ये ट्रीटेबल है? यस अनुज, ये जो डर है, अगर हमने इस पे अपनी भावनाओं को बार बार अगर हम वचन में ध्यान देते हैं, परमेश्वर यीशु से बात, तो चिंता मत, डू नॉट बी एंग्शियस, लेकिन सारी बातों को प्रार्थना करके उसको मेरे पास लेके, जस्ट ब्रिंग ऑल अनटू हिज प्रेयर। व्हाई? वचन अगर आप ध्यान से पढ़ो, उत्पत्ति से लेके पूरे अगर भजन संहिता Psalms 56:3 में लिखा है, व्हेन आई एम अफ्रेड आई पुट माई ट्रस्ट इन यू, है ना। मैं जब डरता हूँ तो मैं अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर रखता हूँ, है ना। दूसरी तिमोथी की दूसरी पत्री 1 अध्याय 7 वचन में पौलुस बड़ा सुंदर शब्द लिखता है, तिमोथी को लिखता है, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। देखिए शब्द का इस्तेमाल करिए, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, वरन सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम मन, साउंड माइंड की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। देयर इज नो फियर इन लव, जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं है। ये मैं बहुत से वचन निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ मेरे भाई, डर को और व्याकुलता को अगर मैं जगह दिया तो आपका धीरे धीरे आपका जो दिमाग है, जो मन है, उस डर और व्याकुलता के उस जाल में फंसता चला जाएगा, और धीरे धीरे करके आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, जो हम पिछले बार बात कर रहे थे। डिप्रेशन की शुरुआत व्याकुलता से शुरू होती है, स्ट्रेस से शुरू होती है, डर से शुरू होती है। इसलिए डिप्रेशन की समस्या कोविड में इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि डर बहुत ज़्यादा फैल गया था। डर और व्याकुलता डिप्रेशन को उत्पन्न करता है, और डिप्रेशन के अनेक लेवल्स हैं जहाँ पे अंत में हम लोग हताश हो जाते हैं, हम लोग होपलेसनेस हो जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं अब कुछ बचा नहीं मेरे हाथ में। इसलिए मेरे भाइयों ये ट्रीटेबल है। इसलिए मेंटल डिसऑर्डर्स के बहुत सारे कारण डर और व्याकुलता उसका कारण होता है। इसलिए जो एंटी दवाइयाँ देते हैं वो आपके माइंड को, एंग्जाइटी को कम करने के लिए लोग देते हैं। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके शरीर में प्रभाव, आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको चक्कर आएंगे, आप खा नहीं खा पाएंगे, आप खड़े खड़े गिर जाएंगे। ये सब एंग्जाइटीज़ के बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा, इनफैक्ट हार्ट अटैक भी हो सकता है लोगों के अंदर। तो आपको ये समझना है, इट्स लीड टू मेंटल डिसऑर्डर, इट कैन आल्सो लीड टू फिजिकल डिसऑर्डर्स, एंड इट इज ट्रीटेबल मेरे भाई, इट इज ट्रीटेबल। थैंक यू सो मच सोलोमन भाई। बॉब, हमारा डिस्कशन बहुत ही गंभीर तरीके से चल रहा है, पर मैं चाहूंगा कि आप एक गाना डालें, जंजीरों को तोड़ता है। All right, let's listen and we'll be right back.
रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सता है। रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है। रूह की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। रूह की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जिसने पुकारा पाया किनारा। नाम यीशु का जिसने पुकारा पाया किनारा। पकड़े फिर ना छोड़ता है, दिल को जोड़ता है। पकड़े फिर ना छोड़ता है, टूटे दिल को जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, प्यारा यीशु यीशु, ऐसा यीशु यीशु। बिल्कुल सही, जंजीरें को तोड़ता है हमारा यीशु, हमें हमें छुटकारा देता है, पापों से छुटकारा देता है। बहुत ही अच्छे गाना। ब्रदर सोलोमन, आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये है कि आज के तारीख में अगर आप देखोगे, कहीं भी कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करोगे, दुनिया भर जो अभी बात कर रही है वो है LGBT इशू, जो कहते हैं प्राइड मंथ है ना, प्राइड मंथ का टाइम बोल रहे हैं, जो है समलैंगिकता, मैं सही बोल रहा हूँ, के बारे में जो लोग बात करें, क्या ये भी एक व्याकुलता, डर, डिप्रेशन, मेंटल इश्यू से रिलेटेड बात है? और दूसरा, जो मेरा दूसरा पार्ट सवाल का ये भी होगा, क्योंकि आपने पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आपने बोला था कि बाइबल को देखो, पर ये डिप्रेशन, व्याकुलता, डर, ये आज के आधुनिक समय की बीमारी या है तो नहीं है? और क्या बाइबल, जिसमें 2000 साल पुरानी कहानियां और 4400 एडी की कहानियां जिसके में लिखा, क्या वो हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा अनुज भाई, और इस दोनों प्रश्नों का मैं शुरुआत से शुरू करूंगा। पहले भाग जो आपने पूछा, यस, आजकल टॉक ऑफ द टाउन कहते हैं, या कहा जाए ये आजकल अब समाज अब खुल के बात कर रहा है LGBT कम्युनिटी और समलैंगिक समस्याओं के विषय पर। जो लोग ये अब आगे आ भी रहे हैं कि कहने की मैं अब पुरुष नहीं हूँ, मैं अब स्त्री नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ मेरे अंदर बदलाव आ चुका है। लोग अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं। इस पे बहुत लोग, जिसको मैं पुरुष समझता वो अब वो स्त्री बन गई हैं, जो स्त्री थी वो पुरुष बन गए हैं। ऐसे आजकल बहुत महंगे सर्जरीज भी इसमें हो रही हैं। हम ये बात आजकल इस कहा जाए, इसमें हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं। इस विषय को हम लोग को चर्चा करना विषय है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके इस प्रश्न के लिए मेरे भाई। जो लोग श्रोता सुन रहे हैं, ये विषय बहुत ही आपको समझना है। हमारा आधार केवल बाइबल है। मैं कुछ जो कह रहा हूँ मेरे विचार नहीं हैं, मैं अपने मन बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पे कुछ 2-3 बातें को कहना चाहूँगा। परमेश्वर जो मेरा सृष्टि करता है, गॉड हु इज़ अ क्रिएटर,
जिसने मुझे और आपको बनाया है, डेफिनेटली साइंस कितना भी कह ले, एक बात तो फैक्ट है, बुद्धिजीवी अभी बात समझने लगे हैं कि कोई सृष्टिकर्ता जरूर है मनुष्य का, और वो बाइबल हमें परमेश्वर को की ओर दर्शाता है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने अपने इमेज, वी आर गॉड्स इमेज बेरर्स, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझे रचा है, और स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दो सेक्स कहा जाए, पुरुष और स्त्री परमेश्वर ने रचा। अब आप पूछेंगे भाई साहब बहुत सारे और भी हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने कुछ बातें को डिफाइन किया गया है, आप प्रकृति में देख लीजिए और आप हमारे परमेश्वर ने जो मुझे और आपको बनाया है। हम लोग की जो जेंडर है, हम लोग का जो हमारा जो लिंग है, कहा जाए सेक्स है, जो हमारा जो मैं पुरुष या स्त्री, हम जो भी जो जेंडर है, मुझे कोई आप ना मुझे बोलें या मैं उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं आप खोजिए आपका जेंडर क्या है, आप किसी और से पूछिए कि आपका जेंडर क्या है, आप किताब में खोजिए मेरा जेंडर क्या। नहीं, परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया है उसमें आप पहचान देखिए परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है। लोग अपनी पहचान को बाहर से देख रहे हैं। पीपल आर लुकिंग द आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड और इन अदर आउटसाइड थिंग, बट आवर आइडेंटिटी शुड कम्स फ्रॉम द क्रिएटर अलोन। हमारी पहचान परमेश्वर की ओर से केवल आ सकती है और कहीं और से नहीं। इसलिए परमेश्वर का जो ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ गॉड एंड द क्रिएटर इज सो इम्पॉर्टेंट टू स्टैब्लिश माई आइडेंटिटी, हु एम आई। मेरी जो पहचान, मैं कौन हूँ, वो केवल परमेश्वर के सृष्टिकर्ता के उस सिद्धांत पर ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं। हाँ, अगर आप बाइबल को हटा दें, परमेश्वर को हटा दें, सृष्टिकर्ता को हटा दें, तो मैं कह सकता हूँ मैं पेड़ हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ, मैं ये लिंग का हूँ, मैं उस सेक्स का हूँ, मैं तारों मैं मेरे अंदर मैं एलियन हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। क्यों? आपका आधार क्रिएशन नहीं है, आपका आधार आपका सृष्टि नहीं है। आप अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं और आपको कोई रोकेगा नहीं। मैं कहूँगा कि बॉब भाई मैं मार्स से आता हूँ, आप थोड़ा हंसेंगे मेरे लिए, लेकिन बोलो नहीं मैं मार्स से आता हूँ, नहीं जी मेरे अंदर 4 स्त्रियां वास करती हैं, आप शायद हंसेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ, राइट? क्योंकि मेरा आधार मेरी सोच है, मेरी आधार मेरी सोच है। देखिए आप, व्हेन माय फाउंडेशन इज माय ओन थॉट, इट्स डिस्टॉर्टेड। हमारे आपको समझना है, ये विचार एक डिस्टॉर्शन से उत्पन्न होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसके विषय में बोलना भी चाहूँगा। एक बच्चे के जो जेंडर है, 2 शब्द आजकल बड़ा पॉपुलर हो चुका है, कंट्रोवर्शियल, सेक्स एंड जेंडर। 2 शब्द है, सेक्स एंड जेंडर। सेक्स इज डिफाइंड बाय फिजिकल, आपके शारीरिक संरचना को सेक्स डिफाइन करता है, लेकिन जेंडर को आपके विचार आपके जेंडर को क्रिएट करता है। तो अभी जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो फिजिकल पे बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है आपके विचार पे, आप अंदर से कौन है। आपने सुना होगा कि शरीर तो पुरुष है लेकिन मेरे अंदर की आत्मा स्त्री की है। मतलब स्त्री एक पुरुष के शरीर में ट्रैप्ड है। या कोई कहते हैं कि मेरा शरीर स्त्री का है लेकिन मेरी अंदर की आत्मा पुरुष की है, तो मेरे अंदर पुरुष की जो आत्मा है वो स्त्री की शरीर में ट्रैप्ड है। ये लैंग्वेज आप थोड़ा, ये बहुत कॉमन हो चला है आजकल। तो ये जेंडर कन्फ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में, जेंडर कन्फ्यूजन, कि मेरी जेंडर क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जेंडर को और सेक्स को अलग अलग डिफाइन नहीं किया है, ये मैं और आप कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारे समाज, संसार, मीडिया कर रहा है, लोग डिफाइन कर रहे हैं और हम उनको सुनकर अपने अंदर शक पैदा कर रहे हैं कि अरे नहीं यार ये बात सही कह रहा है, ये व्यक्ति सही कह रहा है। मैं आपको थोड़ा बायोलॉजिकली आंसर देना चाहूँगा, बायोलॉजिकली आंसर, क्योंकि मैं डीएनए पढ़ता हूँ। हमारे अंदर एक पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम है और स्त्री के अंदर XX क्रोमोसोम्स है, और दोनों के अंदर दोनों हार्मोन्स अलग अलग मात्राओं में उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये नहीं, मतलब परमेश्वर ने जो सृष्टि की है हमारे बायोलॉजिकली शरीर में संरचना के लिए, मेरे अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स भी हैं और टेस्टोस्टेरोन भी है, लेकिन मात्राएं अलग अलग हैं, जो मेरी बॉडी को फंक्शनैलिटी के लिए नॉर्मल रखता है। लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको इंजेक्शंस देकर, उसको मात्राओं को बिगाड़ कर, उसकी पहचान को चेंज करके हम बोलते हैं नहीं, मैं अंदर वो स्त्री की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। हम भावनाओं के आधार पर डिसीजन लेंगे, हमेशा गलती कर बैठेंगे। इफ यू आर टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन आवर इमोशंस, वी ऑलवेज एंड अप इन मिस्टेक्स। बिल्कुल सही। Our decision should not be based on emotions but based on facts.
फैक्ट्स, तत्वों के आधार पे हमें अपनी जेंडर की पहचान करनी है। वो तत्व कहाँ से आता है? मेरे अंदर से नहीं, वो केवल सृष्टिकर्ता की ओर से आता है। तो मेरी पहचान सृष्टिकर्ता और बाइबल से होना चाहिए मेरे भाइयों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसका जवाब कुछ हद तक यही है। मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए ये पहचान कि मैं कौन हूँ, ये केवल सृष्टिकर्ता और वचन के आधार पर ही होना चाहिए, ना कि मेरी भावनाओं के आधार पर, ना कि संसार के आधार पर। पहली And बात। I know that people say that there is you should not call it a disease, and you should not ask for treatment. But what is the response to that? There are people are so advanced now. They say that no, that is what they are. We should accommodate them. We should encourage that feeling of a girl within a boy within a girl, gender flow, gender neutrality. So, as a Christian, I know there are so many ways, and it's a big answer, but in short, how can we answer that? ओके, उसका बहुत सिंपल आंसर है मेरे बहुत सिंपल आंसर है। हमारे घर में मैंने कहा बच्चे हम जब पालते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं, तो जब छोटे, मेरा जब इवान विहान जब बहुत छोटे थे, तो मोमबत्ती कैंडल, राइट, मोमबत्ती हाँ, मोमबत्ती जल रही थी, एंड दे आर ट्राइंग टू टच इट with their small fingers when they are too small, 1.5 years old. They are excited to see candle. पहली बार जब कैंडल देखो, अरे क्या लाइट है ना, और हाँ, दोनों ने मिलकर अपना हाथ डालने की कोशिश करी। तो मेरी वाइफ उनको हाथ हटा रही थी बार बार, अरे हाथ जल जाएगा, अरे हाथ जल जाएगा, अरे हाथ जल जाएगा। आप क्यों करते हैं ऐसे? उन बच्चों को नहीं मालूम कि वो आग है, करेक्ट? सही बात है। yes, कभी बच्चे कॉइन खा लेते हैं, कभी बच्चे अभी हमारे घर में भतीजी है, उसने छिपकली को पकड़ लिया, कॉकरोच को, lizard को पकड़ लिया, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, राइट? देयर इज नो नॉलेज एंड देयर इज नो फियर, राइट? डू एनीथिंग, बट हु इज टू एजुकेट देम? किसको ज्ञान देना है? पेरेंट्स बोलते हैं बेटा वो आग है, वो छिपकली है, वो कॉकरोच है, राइट? उसी के समान एक बच्चा अगर गलती से, अगर वो अपने अपने किसी ड्रेस को उठा रहा है जो अपनी बहन का है, या मम्मी का लिपस्टिक उठा रहा है, या कोई ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहा है जो आपको लगता है कि उसके जेंडर को डिफाइन कर रहा है, तो ये गलत है। आप लोग ये बिल्कुल गलत धारणा है कि वो अपने जेंडर को पिक कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे बॉब, ये जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि डोंट टीच देम, डोंट डिस्टर्ब देम, दिस, ये जब उनको आपको एक ही जवाब देना है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप साइकोलॉजी बुक पढ़ते हैं, तो एक बच्चे के जेंडर को स्टैब्लिश उसके पिताजी करते हैं, उसके फादर करते हैं। इसलिए परिवार में फादर का बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंटिंग में। इसलिए जिस घर में बचपन में फादर की डेथ हो गई हो, या डिवोर्स हो गया है, या बचपन से उसके फादर दूसरे कंट्री में नौकरी करने या दूसरे शहर में नौकरी करने चले गए, उसके बचपन से उसकी माँ केवल घर पर है, तो उसके फादर के एब्सेंस के कारण से बोथ लड़का या लड़की अपने अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, हो जाता है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं पेरेंटिंग सीख रहा था, तो साइकाट्रिस्ट ने बोला था कि यू शुड एम्फेसाइज दैट ही इज़ ए गुड बॉय एंड ही इज़ ए गुड गर्ल। मीन्स जो शब्द है बचपन से एक हस्बैंड, उसको फादर एम्फेसाइज करता है, फादर की प्रेजेंस स्टैब्लिश करता है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने पति और पत्नी का जो रोल है बहुत ही डिफाइन किया है अपने बच्चों के लिए। जहाँ ब्रदर सोलमन, एक्चुअली जब मैं अब बच्चों के बारे में बात कर रहा था, ये क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो ये एक सवाल मुझे आप पूछना पड़ेगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इस बीच पे, कि बच्चों में जैसे ये अभी जिस बातें में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा एंग्जाइटी, जो 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 कहते हैं व्याकुलता, डर, ये बच्चों में कैसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये घर में इनको है, और इनको कैसे हम मदद कर सकते हैं? उसके ऊपर से दूसरा जो इसके साथ साथ सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ कि मीडिया इतना ज्यादा आजकल जो दिखा रहा है, इन सबको हम लोग बच्चों को क्या चीजों से रोके, और उनको क्या चीजों में लगाएं ताकि वो इन सब चीजों से के लिए तैयार हो सके, इन सब चीजों को फेस करने के लिए तैयार हो सके। पहली बात मेरे भाई, आप लोग जब भी बच्चे जब अकेले बैठे कार्टून्स देखते हैं, आजकल जो टीवी में बहुत सारे कार्टून चैनल्स हैं, आप लोग प्लीज़ देखिए कि कौन सा कार्टून क्या प्रमोट कर रहा है और क्या सिखा रहा है।
आजकल बहुत सारे कार्टून्स आ गए हैं जो एलजीबीटी या होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ईजिली प्रमोट कर रहा है और बच्चों को बताया जा रहा है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। आपको पहली बात बड़े केयरफुली रहना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं और कहाँ से क्या सीख रहे हैं, पहली बात। इसलिए पेरेंट्स जो अक्सर बच्चों को टीवी सामने छोड़ के गायब हो जाते हैं, वो गलत बात है। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हमें बहुत फ़िल्टर करना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कहाँ से आता है, दोस्तों से आता है, स्कूल से आता है, या फिर उनको टीचर से आता है, या पड़ोसी से आता है, या फिर टीवी से आता है। इन सब को आपको पता करने, लोग कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ से सोर्स क्या है, आपको पता करना है। तीसरी बात, उनको बार-बार वचन, बाइबल, परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है, मुझे कैसे बनाया है, सृष्टिकर्ता, उत्पत्ति की सारी क्रिएशन की स्टोरी, बाइबल के सारे सिद्धांतों को बचपन से सिखाना शुरू करिए। मैं कह रहा हूँ आप घर में बाइबल स्टडी शुरू करिए, घर में थोड़ा सा टाइम निकालिए बच्चों के लिए, खासकर पेरेंट्स जो बहुत नौकरी में बहुत बिजी हैं। आप टाइम निकालेंगे ना, आपका उसका प्रभाव आपके बच्चों में दिखेगा। एक और जो शब्द, जो जवाब मैं आपको, जो आपने पूछा था पहले कि हम लोग कैसे इसका कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, आपने पूछा था जो इतने सालों से, क्या ये बात अभी ही निकली है, बहुत सालों से? नहीं मेरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है। बाइबल जो 2000 साल पुरानी है, उसमें ये शब्द बहुत कॉमन, परमेश्वर समलैंगिक समस्या सोदोम गोमोरा में स्पष्ट किया था। साथ साथ में डर और व्याकुलता के विषय में परमेश्वर ने शुरुआत से कह दिया था। पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उत्पत्ति से, डू नॉट फियर, डू नॉट बी एंग्शियस, डू नॉट फियर, डरो मत। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य बहुत डरता है, व्याकुल होता है, उसको भविष्य के बारे में, कल क्या होगा वो जानना चाहता है, वो डरता है कि कल क्या होगा। परमेश्वर हमेशा बोलता है मुझ पे भरोसा कर, मैन ऑफ लिटिल फेथ, प्रभु यीशु ने बार बार बोला। इसलिए बाइबल में कोई आज जो हम बात करो नई बात नहीं है, बाइबल में बहुत पहले से इसके बारे में लिखा गया है। सही। बॉब, मैं बोल रहा हूँ सच में हमारी जो डिस्कशन है बहुत ही गंभीर डिस्कशन है, बहुत ही सीरियस लेवल पे जा रहा है। एक गाना सुनना चाहिए थोड़ा सा, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा हम गाना सुन के आ सकते हैं। यीशु का लहू। Definitely. Yes, let's listen to this beautiful song. Dear listeners, don't go anywhere. We're coming to the very end of our part 2 in our series of talks, and I hope you've enjoyed it. So let's listen to this song and we'll come back very fast. तेरे लहू से पाप धुल जाएंगे, मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। तेरे लहू से पाप धुल जाएंगे, मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। को बदलाता है, हमें बचाता है, को बदलाता है, हाँ हमें बचाता है। यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है। कई जैसे तेरे पीछे आएंगे, विश्वास से लंगड़े चल जाएंगे, या कई जैसे तेरे पीछे आएंगे। झुकना सिखाता है, बढ़ना सिखाता है, झुकना सिखाता है, हाँ बढ़ना सिखाता है। यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है। यीशु का लहू बचाता है, सिखाता है। बिल्कुल सही, यीशु का लहू ही है जो हमें बढ़ाता है और आगे जिंदगी को चलाना सिखाता है। बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही मीनिंगफुल गाना था। सोलोमन भाई, आपसे ये आखिरी प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा ये है कि
एक ईसाई होते हुए के नाते, एक माता पिता की तरह, चर्च में जैसे कोई प्राचीन लोग होते हैं, कोई युवा या युवा नेता होते हैं, ये लोगों में, अपने जनों के बीच में ये जो व्याकुलता, डर और ऐसे जो मेंटल इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, और उनको कैसे परमेश्वर के वचन से उनको कैसे मदद करें, ये आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं बाइबल की तरफ से? जी जी, थैंक यू भाई आपके सवाल के लिए। यस, बस हमें दो काम करना है। जो हम कलीसिया में जो प्राचीन लोग हैं, जो अगुवे लोग हैं, यूथ लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, कोच हैं, जो हमारे कलीसिया में आप लोग जैसे लोग हैं, आप लोग को बस अपने कानों को और अपनी आँखों को खोल के रखना है। पहली बात, मतलब हमारे इर्द गिर्द हमारे जवान वो क्या बोल रहे हैं, मीटिंग में क्यों आना बंद कर दिया है, ये आते हैं तो क्या लाइफ में क्या ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग अक्सर बहुत बाद में समझ में ऐसा क्यों होता है, लेकिन उनके डेली हर वीक के लाइफ को आप लोग थोड़ा सा जांचना और पूछना शुरू करिए आपस में। मैंने पिछले बार कहा था, जब संडे आते हैं, कलीसिया में आते हैं, जहाँ सत्य, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पे सत्य बोलना शुरू करें, तो कलीसिया को समझ में आए कौन किस समस्या में गुजर रहा है। इसलिए भाई कैसे हैं, बहन कैसी है, जब सवाल आपसे कोई पूछता है तो प्रेज द लॉर्ड बोलने से पहले सोचिए कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। अपनी बातों को बोलिए। जैसे भाई मैं आज, जैसा आपने पूछा सोलोमन भाई आज मंडे कैसा, मैंने मंडे आज बहुत ही हेक्टिक था, बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत ही टेंशन में था। ये सत्य है, बिल्कुल बोलिए, सच बोलिए। तो आपको पूछना चाहिए कि हाँ भाई क्या टेंशन थी, कैसा रहा आपका, बहुत ही क्या खाना खा पाए, कैसा रहा, आपकी नींद कैसी रही। ऐसे 2-3 सवाल पूछने से आप किसी व्यक्ति से जुड़ पाएंगे। उसको आप अकेले में बात करिए। साथ साथ में वचन के प्रति हमें उनको सिखाना है कि दिन प्रतिदिन मुझे कितना बार परमेश्वर पर भरोसा कर, वचन की सच्चाई, पवित्र आत्मा गवाही, बार बार जितना वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना में लवलीन रहकर उसके वचन की सच्चाइयों को सीखेंगे। एक ग्रुप बाइबल स्टडी, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, आप लोग 3 या 4 लोग का ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में शेयरिंग करिए, सुनिए, और एक वचन को निकालकर उस पे आधार पर अपनी उस परमेश्वर ने हमें उस वक्त पे क्या सिखा रहा है उसको अमल प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं, और इसमें कोई बड़े बड़े थियोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े आपको कॉन्फिडेंस लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपल, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें वचन में दे दिया है, उसको निकाल कर इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। इनफैक्ट कभी कभी मैंने देखा, अक्सर मैंने कहा है, कभी कभी मेरे पास जवाब नहीं होता है। भाई या बहन, कुछ भाई अपनी गंभीर समस्या को बोलकर आप बस सुनते रह जाते हैं कि इतनी बड़ी समस्या का कोई समाधान नहीं है। राइट, सुनिए और सुनकर अंत में बोलिए, भाई दुख सुन के बहुत बहुत दुख लगा, मैं आपके लिए थोड़ी सी दुआ करना चाहता हूँ। दुआ करके हिम्मत बांधिए और उसे आप बार बार उसे मिलिए, केवल सुनिए। आपके पास कोई, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हमेशा जवाब, हम लोग सोल्यूशन देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं। राइट, बिल्कुल अरे सही। ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, ये मत करना। हम लोग बहुत जल्दी, वी वांट टू गिव क्विक सॉल्यूशन। वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड लिसन। सॉल्यूशन इज नॉट इन योर हैंड, सॉल्यूशन इज द हैंड ऑफ द लॉर्ड। समाधान केवल परमेश्वर के हाथ में, आप समाधान नहीं है। अक्सर हम लोग करते क्या, मतलब हम लोग समाधान बन के उनको समाधान देने की कोशिश, अरे मैंने क्या उसकी हेल्प करी, ओ मैंने उसको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया। ये गलत धारणा है। वी कैन नॉट बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, वी ओनली कैन बी ए इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। हम केवल परमेश्वर के हाथ में एक औजार हैं जो किसी की ज़िंदगी को प्रभावित करके उसको परमेश्वर की ओर हम मोड़ कर परमेश्वर पर निर्भरता को वापस हमें लेके आए। परमेश्वर पर निर्भरता को हमें दोबारा वापस लेके आना है, जहाँ विश्वास, अनुग्रह और करुणा और पवित्र आत्मा की सहायता जो वचन में हमें मजबूत करता है, वो हमारे डर, चिंता, व्याकुलता और सारी जो समलैंगिक समस्या है उससे हमें बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। तो मेरे भाइयों, प्लीज़ आप लोग ग्रुप बनाएं, सुनिए और सुनना शुरू करिए। थैंक यू सो मच सोलोमन भाई, थैंक यू सो मच। आपने पिछले 2 हफ्ते से आए, हमारे साथ बातें किया, मेंटल इश्यूज को काफ़ी डिस्कशन में लेके आए। हाँ, ये बात है कि मेंटल इशू ये ख़त्म नहीं होता, बहुत बातें करने फिर भी बाकी हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ बॉब रेडियो पे आने के लिए, हमारे साथ ये बातें करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, आज की जनरेशन्स के लिए है। थैंक यू सो मच अगेन। और हमारे सारे श्रोताओं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप लोग भी इसमें लाभ पाए होंगे। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा इसके बारे में, ताकि वो भी इसमें से लाभ ले सकें।
Thank you again to all listeners. Thank you again, Solomon bhai, to you. Thank you. Yes, thank you everyone for tuning in today. And I hope that we'll meet once again next Monday with another wonderful guest talking to us some wonderful subjects again. Thank you so much, Brother Solomon and Brother Anuj. Thank you for this wonderful day. Thank you for giving us some wonderful topics that we can keep thinking and keep talking about. Well, dear friends, it's time for us to say goodbye. Please do keep in touch. Please do stay in touch with us on our Facebook and YouTube pages, and we'd love to hear from you. Well, this is along with RJ Anuj. This is Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.